Hi, welcome to yet another episode of Beyond the Spotlight. Before we start today's episode, I would like to express my sincere gratitude to all of you for showering so much love and appreciation on this little initiative of mine. My inbox has been buzzing with messages of love and encouragement, and this has been truly heartwarming. Clearly, I must be on the right track, and your love and support serve as the much needed affirmation I so need to carry on this beautiful work. So, thank you for that. My guest today is someone who expresses herself gracefully through movement and rhythm. Known as the Jai Jai Shiv Shankar girl from the tender age of 10, she is one of the most recognized faces in the world of Kathak in the National Capital Region. She has wowed audiences both in India and abroad by performing in some of the biggest events ever. Want to know just how big? Well, her first major breakthrough happened when she was just 16 years old and got to perform at the Commonwealth Games in 2010. Since then, she has only gone on to becoming bigger, better, and bolder. Today, not only does she work with the Ministry of Culture, but also works with international delegations, large corporates, works as a visiting faculty at a college, does so many state festivals, and runs her own training academy called Jhankar. I don't know how she does it all, so I'm going to be talking to this superhuman of a woman directly. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the ever so charming and the sweetest girl I've had the pleasure of talking to, Anjali Munjal. Hey Anjali, welcome to the show. First of all, thank you so much for making the time. I know आपका schedule बहुत ही busy रहता है, आपके rehearsals, travel plans, performances. Honestly, I wasn't sure if we would be able to shoot today. So thank you so much for making the time. No, Pooja. Thank you so much for having me here. Thank you for giving me this wonderful opportunity. तो सबसे पहले तो मुझे आपसे ये जानना है कि आप इतना कुछ जगल कैसे करते हो. मैंने आपके इंट्रोडक्शन में 5 या 6 चीज़ें बोली and it was so difficult for me to remember all of that. But you do this on a day-to-day basis. So what's your secret? See Pooja, I teach because art जब आप सीखते हो तो you have to pass it on to the next generation. So that's why I teach. I work with corporates because जो मैंने सीखा है वो मुझे घर घर पहुंचाना है और मुझे लगता है कि corporates के थ्रू ही मैं घर पहुंचा सकती हूँ. तो I work with them और कुछ काम लक्ष्मी जी के लिए करना पड़ता है. और रही बात आर्टिस्ट्स की, तो वी डोंट वर्क फॉर मनी मोस्टली और फेम के लिए. हमें अच्छा लगता है इसलिए हम परफॉर्म करते हैं. सो सम थिंग्स आई लाइक दैट. ओके, सो अंजलि, टेल मी वन थिंग. इज दिस समथिंग दैट यू वांटेड टू डू सिंस फॉरएवर, या आपका इस प्रोफेशन में जाना एक बहुत ही नेचुरल प्रोग्रेशन था? सो आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ. हम 3 सिबलिंग्स हैं, मेरी बड़ी सिस्टर और छोटा भाई है. और मेरे पापा मम्मा चाहते थे कि हम में से कोई एक डॉक्टर बने, क्योंकि मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं और मेरी मदर वाज अ हेड नर्स इन हिसार. तो आई वाज बोर्न इन हिसार एंड देन माय पेरेंट्स शिफ्टेड देयर बेस टू दिल्ली. तो पापा चाहते थे कि हम तीनों में से कोई डॉक्टर बने और मैं लॉयर बनना चाहती थी. बट देन मैं स्कूल में जैसे एनुअल शोज होते हैं वैसे ही मेरे टीचर ने मुझे देखा एंड ही सॉ कि मैं आई एम अ गुड परफॉर्मर. तो वहाँ से मेरा थोड़ा डांस की तरफ इंक्लिनेशन हुआ और मेरे सर ने ही मुझे अलग अलग जगह परफॉर्म कराया स्टेज पे. और आई वाज अ बॉलीवुड डांसर अर्लियर. देन आई बिकेम अ कथक डांसर लेटर ऑन. ओके, तो आपका कथक में फॉर्मल ट्रेनिंग किस एज पे शुरू हुआ एंड कौन से इंस्टीट्यूट से आपने ये ट्रेनिंग लिया है? ओह, तो जैसे मैंने बताया, स्कूल में जब मैं थी एनुअल शोज़ में मेरा सिलेक्शन हुआ. उसके बाद से मेरे सर ने मुझे परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दिया था. तो मैं बॉलीवुड शोज़ करती थी और मैं जय जय शिव शंकर गर्ल के नाम से फेमस थी. बट वहीं पे पापा को थोड़ा सा पता चला कि क्लासिकल सीखना ज़्यादा बेटर है. तो पापा ने मुझे बाल भवन भेजा. क्योंकि हम 3 भाई बहन, पापा नहीं सबकी फ़ी अफोर्ड कर सकते थे. तो 100-200 रुपीज़ उस टाइम फ़ी हुआ करती थी उसकी. तो पापा ने मुझे वहाँ भेज दिया. तो वहाँ पे मैंने अपना एक कोर्स चूज़ किया, कथक. और सेकंड वो सिंगिंग. तो मैं वहाँ 1 घंटा कथक क्लासेस करती थी. वो कंटिन्यू कराया पापा ने. देन वहाँ से पता चला कि गांधर्व महाविद्यालय एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली ITO में, जहाँ पे मुझे डालेंगे तो मैं कुछ बेटर सीख पाऊँगी. तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ. वहाँ मैंने ऑडिशन दिया और 2007 में मेरा एडमिशन हुआ गांधर्व महाविद्यालय में. और मैंने अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग वहाँ पे कंप्लीट की टिल 2016.
2016 से लेकर 2020 तक मैंने एज ए फ्रीलांसर काम किया। देन 2020 में मुझे कुछ और सीखने का मन किया, क्योंकि मेरी अभी तक की जो ट्रेनिंग थी वो लखनऊ घराने में थी। ओके। तो मैं थोड़ा सा और सीखने का इच्छा मेरे में जागी, तो मैंने 2020 में गुरु विधा लाल जी को ज्वाइन किया। ओके। और वो जयपुर घराना हुआ। कथक के बहुत सारे घराने होते हैं, Okay. लखनऊ, बनारस, जयपुर, रायगढ़। सो दैट आई डिड। सो प्रेजेंटली आई एम लर्निंग अंडर गुरु विधा लाल जी एंड आई एम वर्किंग अंडर हर। ओके। तो आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग तालीम पिछले 15-16 साल से चल रही है। तो अंजलि, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, आप 3 भाई बहन हैं, और बट यू वेंट टू गांधर्व महाविद्यालय, विच आई नो इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली, इन दिल्ली। तो आई एम श्योर उसकी फ़ी भी वैसे होती होगी। तो आपके पापा उस टाइम पे आपकी फ़ी अफोर्ड कैसे कर पाते थे? ओह, सो व्हेन आई वाज इन स्कूल और मेरे को जब अलग अलग जगह परफॉर्मेंसेस मिलने लगी, तो मेरे को एक स्कॉलरशिप दी गई स्कूल में ही, बिकॉज आई वाज टैलेंटेड उनके अकॉर्डिंग। तो मेरे को 500 रुपीज़ की एक स्कॉलरशिप मिलती थी, तो मेरे फ़ी में से 500 रुपीज़ कट हो जाते थे। ओके। और गांधर्व महाविद्यालय की फ़ीस हुआ करती थी 500 रुपये। तो वो जो फ़ीस वहाँ पे कट होती थी पापा वहाँ दे देते थे। उसके बाद कथक में आई रिमेंबर आई वाज द फर्स्ट गर्ल जिसको गांधर्व ने स्कॉलरशिप दी थी, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन स्कॉलरशिप। आई डोंट नो इफ़ यू नो, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी जो हैं वो बहुत बड़ी स्कॉलर हैं, जिन्होंने आर्ट के ऊपर बहुत आर्टिकल्स लिखे हैं और बहुत काम किया है। उसके बाद मुझे मिली डॉक्टर तारा भट्टाचार्य जी स्कॉलरशिप गांधर्व महाविद्यालय से। उसके बाद मुझे स्टेट स्कॉलरशिप मिली, विच इज़ साहित्य कला परिषद स्कॉलरशिप फॉर यंग आर्टिस्ट, विच वॉज इन ईयर 2014। ओके। वो 2 साल की होती है। एंड देन 2016 में मुझे CCRT स्कॉलरशिप मिली, वो नेशनल स्कॉलरशिप मानी जाती है, विच इज़ कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्कॉलरशिप फॉर यंग आर्टिस्ट। ओके। तो आपने एक्सटर्नल परफॉर्मेंसेस किस एज पे करना शुरू किया? 2010। ओके। यू नो ना, 2010 में कॉमनवेल्थ Yes, गेम्स absolutely. हुए थे, उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। उसमें एक परफॉर्मेंस थी ट्री ऑफ लाइफ, जिसमें बहुत सारी डांस फॉर्म्स थे, क्लासिकल, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी। उसमें कथक में कुछ होंगे 100 लोग, उसमें से एक मैं भी थी, और दैट वाज माय फर्स्ट परफॉर्मेंस। और उसी परफॉर्मेंस में मुझे पैसे भी मिले थे फर्स्ट टाइम। सो दैट वाज योर फर्स्ट पेड परफॉर्मेंस? यस, दैट वाज माय फर्स्ट पेड परफॉर्मेंस, और उस परफॉर्मेंस से मैंने अपने लिए एक फ़ोन खरीदा था। दिस ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ माई ओन इंटर्नशिप टाइम। आई रिमेंबर मैंने 2013 में अपनी इंटर्नशिप की थी। Oh, nice. और उस समय जो मुझे स्टाइपेंड मिला था, मैंने वो ब्लैकबेरी के फ़ोन पे सब खर्च कर दिया था, बिकॉज आई Nice. रिमेंबर एट दैट पॉइंट इन टाइम ब्लैकबेरी यूज्ड टू बी क्वाइट अ रेंज। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गर्ली थिंग टू डू, Yes. कि जैसे पैसे आते हैं आप उससे पहले उसको शॉपिंग खर्च में कर देते हैं। कर दो, फ़ोन ले लो। सो यस। तो अंजलि, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत यंग एज से एक्सटर्नल परफॉर्मेंसेस कर रही हैं, पेड एंड अनपेड बोथ। उसके साथ साथ आप अपनी रिहर्सल्स भी कर रही थी, स्कूल भी मैनेज कर रही थी, कॉलेज भी मैनेज कर रही थी। तो इतना कुछ, और दिन में घंटे तो 24 ही होते हैं। सो हाउ डिड यू यूज टू मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 24 आवर्स? इसमें तो मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपको बताने के लिए। तो स्कूल यूजुअली 2 बजे ख़त्म होते हैं, और मेरा गांधर्व शुरू हुआ करता था 3 बजे। 3:15 मतलब आपको घुंघरू बांध के गुरुजी के सामने रेडी रहना है, और आपको टाइम पे आना है, क्योंकि अगर आप लेट हुए तो आपको पीछे खड़ा होना पड़ेगा। तो आई रिमेंबर 2 बजे छुट्टी होती थी, मेरा घर पास में ही था, बजाज का स्कूटर पापा के पास हुआ करता था। तो उसमें पापा मुझे लेने आते थे, 15 मिनट्स में मैं घर पहुंचती थी। उस 15 मिनट्स में मम्मा खाना रेडी करके रखती थी, क्योंकि पापा मम्मा साथ में फार्मेसी पे बैठते थे। ओके। तो 15 मिनट्स में पापा लेने आए, मम्मा घर पे खाना रेडी करके रोल बना के रखा हुआ है। मैंने फटाक से अपना ड्रेस पहना, वाइट सूट, वाइट पजामी, दुपट्टा ड्रेप करके एकदम रेडी। बाय 2:30 मैं घर से निकल जाती थी, और 3 o'clock मैं अपने इंस्टीट्यूट में पहुंच जाती थी। 3:15 तक घुंघरू बांध के एकदम सामने खड़े होना है, क्योंकि अगर मैं पीछे खड़ी हुई अपनी टीचर का अटेंशन लूज करोगे, एंड यू वांट कि आपकी टीचर सिर्फ आपको ही देखे। सो दैट वाज माय शेड्यूल। मैं आई डोंट रिमेंबर मैं कभी पार्क गई हूँ या मेरे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गई हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे ट्यूशन्स होते थे। अब पापा को मुझे डॉक्टर बनाना है, तो उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सबकी ट्यूशन्स लगाई हुई हैं। तो मेरा नॉर्मल लोगों की तरह तो लाइफस्टाइल कभी नहीं रहा। आई वाज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स
whatever I आई was थिंक doing. अगर ये डेडिकेशन नहीं होता तो शायद आप आज उस जगह पे नहीं पहुंच पाती जहाँ पे आप हैं. सो आई थिंक फॉर दैट इज़ ट्रू फॉर एवरी प्रोफेशन. सो इज़ इट फेयर टू से कि आपके पेरेंट्स का सपोर्ट इनिशियल ईयर्स में तो बहुत रहा है, पर जब आपने जैसे कि बताया योर पेरेंट्स वांटेड यू टू बी अ डॉक्टर, जब आपने डिसाइड किया कि आप इसको प्रोफेशनली परसू करना चाहती हैं, उस टाइम पे उनका सपोर्ट साथ में था या नहीं था? Yes or no? Initially I would say yes, क्योंकि पापा ने ही मेरे को इन सब इंस्टीट्यूट से इंट्रोड्यूस किया. मम्मा को जब दिखा कि भाई इसका इंक्लिनेशन डांस की तरफ ज़्यादा हो रहा है और हमें तो डॉक्टर बनाना है, तो तब मम्मा थोड़ा हो गई थी. जैसा कि टिपिकल इंडियन फैमिली में होता है, लड़कियां डांस क्यों कर रही है, मेरी फैमिली में भी था. मदर्स की साइड से होता है ना, नानी बोलती है, मासी बोलती है कि अरे क्यों डांसर बना रहे हो. तो वो भी था. जबकि पूजा मैं बताती हूँ, आई एम द ओनली गर्ल अपनी फैमिली में जिसने इतना ट्रैवल किया है, इंडिया एंड अब्रॉड. अभी मैं परसों उदयपुर में थी. परसों नहीं, उससे एक दिन पहले मैं उदयपुर परफॉर्म कर रही थी. कल सुबह मैं उज्जैन से वापस आई हूँ और कल रात की मेरी जलंधर की ट्रेन है. तो मैंने जितना ट्रैवल किया मेरी फैमिली में किसी ने नहीं किया. तो इनिशियली तो मम्मा थी फेवर में, बाद में उनको लगा कि नहीं, मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई बच्चा तो डॉक्टर बने. ओके. तो दैट वाज. तो आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया? मैंने अपना ग्रेजुएशन फिलोसफी में किया है, पर मेरा एडमिशन जूलॉजी में हुआ था. तो वो ट्रांजिशन जूलॉजी से फिलोसफी कैसे हुआ? इसकी भी एक स्टोरी है. तो एडमिशन हुआ था ईसीए कोटा से, मुझे एडमिशन मिला था हंसराज में. बट मुझे प्रोग्राम मिला था बीए प्रोग्राम. नहीं अलाउड है, फैमिली में अलाउड ही नहीं था. डॉक्टर बनना है तो बनना है. तो जूलॉजी में मेरे मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हुआ. तो मैंने एडमिशन वहाँ पे, मैं कॉलेज जाना शुरू किया. क्लासेस अटेंड नहीं करती थी क्योंकि डांस क्लासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. तो उसकी वजह से मेरी बैक लग गई. यू नो ना व्हाट इज बैक? आई थिंक दिल्ली में पढ़ने वाले को हर किसी को पता है कि बैक लगने का मतलब क्या होता है. राइट. तो मेरी बैक लग गई, सारे सब्जेक्ट्स में फेल. अब प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया. और तब तक मैं अपने कॉलेज की जो डांस सोसाइटी थी नज़ाकत, आई एम फ्रॉम गार्गी कॉलेज. ओके. तो गार्गी की डांस सोसाइटी थी नज़ाकत, उसकी कन्वीनर बन चुकी थी. तो प्रिंसिपल भी जानती थी क्योंकि मैं काफ़ी शोज परफॉर्म कर रही थी और अवार्ड्स लेके आई थी कॉलेज के लिए. सो मेरी प्रिंसिपल ने बोला कि क्या करना है अब. मैंने बोला निकाल दो कॉलेज से, मुझे तो डांसर बनना है, पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है. उन्होंने बोला चल छोड़, मैं तेरे को एक और चांस देती हूँ, तू कोई एक और कोर्स चूज़ कर ले. तो मैंने कहा इंग्लिश ऑनर्स. शी सेड नो, तेरे से फिलोसफी नहीं हो रहा, जूलॉजी नहीं हो रहा, तो इंग्लिश ऑनर्स करेगी. तो माय फ्रेंड सेड कि मैम इसको फिलोसफी पढ़ा दो, मैं अपने नोट्स दे दूंगी इससे. एंड देन समहाउ मैंने पास कर लिया. मैंने अपनी 3 साल की डिग्री 6 साल में की. और मैंने अपने कथक के सारे एग्जाम स्टॉप किए. ओके. पर पढ़ाई मुझसे नहीं हुई. तो आपको लगता है दैट यू शुड हैव टेकन दैट सीरियसली? डू यू रिग्रेट नॉट टेकिंग योर एजुकेशन सीरियसली? यस आई डू. क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आप कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलती है और उस नॉलेज से आप कुछ अलग क्रिएट कर सकते हो, है ना. बट मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने जो पढ़ाई नहीं की ढंग से, पर मैं डांस कर रही थी. आई वॉज ट्रैवलिंग लाइक एंड मेकिंग मनी फ्रॉम सच अ यंग एज. हाँ, आई वॉज मेकिंग मनी फ्रॉम वेरी यंग एज. मेरे को याद है कि मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस के बाद से मैंने कभी घर से पैसे नहीं लिए. आई वॉज बाइंग क्लोथ्स फ्रॉम माई ओन मनी. तो वो एक इंडिपेंडेंट सी फीलिंग मुझे बहुत सालों से आने लगी. पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पढ़ लेती तो और आई कुड हैव डन मच बेटर. रियली? या. और मैं यही एडवाइस करूँगी कि अपनी एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करो. तो अंजलि, ये तो हुआ आपके प्रोफेशन के पॉजिटिव्स के बारे में बात करना, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात करना, विच फॉर्चुनेटली हैज़ वर्कड आउट इन योर फेवर सो फार. आई थिंक आप उन बहुत ही चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको अपना पैशन परसू करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज़ दैट काइंड ऑफ लक और प्रिविलेज. बट एवरी प्रोफेशन हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस. कुछ भी आसान नहीं है. आप इनफैक्ट अगर आपका एक सपना है और आप उस सपने की तरफ काम करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है. तो आपके प्रोफेशन में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, दैट यू वुड वांट टू शेड सम लाइट ऑन? प्रोफेशनली पहले मैं बात करूँगी. तो मैंने जैसे बताया कि मेरी जो ट्रेनिंग इनिशियल रही वो लखनऊ घराने में रही और लेटर ऑन मैं जयपुर में स्विच हुई. तो जैसे आप अपनी जॉब स्विच करते हैं ना, हमारी फील्ड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता. इट्स नॉट ईजी. ओके.
आप एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. ठीक है, जो लखनऊ घर आने वाली चीज़ें हैं वो आप लखनऊ जयपुर में नहीं कर सकते. ये कुछ है जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है. और सेकंड चैलेंज जो प्रोफेशनली मुझे लगता है आता है, या आता ही है, ये तो है ही, कि जैसे आप कोई भी लॉ की डिग्री आप करना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, 4 साल 5 साल एंड यू आर रेडी, आप फील्ड में जाने के लिए तैयार हैं. बट डांस में इनिशियली 3 इयर्स जो होते हैं वो तो आपके फाउंडेशन होते हैं. उसके बाद आप ग्रेजुएशन जिसे कहते हैं उसको हम कहते हैं विशारद. ओके. एंड देन लेटर ऑन हम मास्टर्स करते हैं जो उसको हम अलंकार कहते हैं. ओके. तो ये पूरा प्रोसेस कुछ 10 या 11 साल का होता है. देन यू आर रेडी टू गो इन द फील्ड एंड यू आर रेडी टू वर्क. तो ये एक प्रोसेस है तो आई जिसमें थिंक हर बहुत, किसी में इतना पेशेंस भी नहीं होता होगा. बिल्कुल नहीं, वही मैं बोलने लगी थी कि पेशेंस जो है वो बहुत चाहिए आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए. एंड आई थिंक पूजा वी आर द लकी वन एंड वी से वी आर द चोजन वंस जिनको भगवान ने चूज़ किया इस आर्ट के लिए. अब मैं पर्सनल पे अगर आऊँ तो इट्स बिन ऑलमोस्ट 6 years दैट आई एम मैरिड. और मैं अपनी फैमिली प्लान नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इफ़ आई डू सो मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे और मुझे स्टेज पे जाना है. आई हैव टू लुक अ सर्टेन वे. आई कैन नॉट लीव माई बेबी जस्ट लाइक दैट बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग. मैं इस हफ्ते यहाँ हूँ, अगले हफ्ते वहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ, वहाँ हूँ. आई कैन नॉट लीव द बेबी जस्ट लाइक दैट. तो ये मुझे एक प्रॉब्लम लगती है मेरी, जो एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है. मेरी लाइफ में मुझे लकीली कोई फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं आया. आया भी तो मैंने सुना नहीं. मेरा हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव. बट मुझे सुनने मिलता है मेरे फेलो डांसर्स से या जूनियर्स से या जो सीनियर्स रहे हैं कि उनकी फैमिली में जब वो किसी के साथ शादी करने जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि अच्छा अगर आपका कोई टूर आएगा तो 1-2 दिन का टूर होगा तो चलेगा. अगर 10-12 दिन के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं फीमेल्स को हर कॉम्प्रोमाइज़ करने ही पड़ते हैं. तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो मुझे लगता है. तो क्या आपको इसके साथ साथ कोई स्टीरियोटाइप्स भी फेस करने पड़ते हैं रिलेटेड टू योर प्रोफेशन? क्या लोगों के दिमाग में कोई ऐसा सेट इमेज है रिगार्डिंग कथक डांसर्स? दे आर नॉट एजुकेटेड दे से. जबकि जितने IAS ऑफिसर्स हैं मोस्टली उनके घर के जितने बच्चे हैं वो हमारे साथ डांस सीखते हैं. कुछ लोगों ने अपनी अपनी बुक्स लिखी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हैं. PhD उन्होंने की है, मास्टर्स. मेरी खुद की गुरु PhD कर रही हैं. तो ये एक मिथ मैं कहूँगी, लोग सोचते हैं कि ऐसा है बट ऐसा नहीं है. सो अंजलि, जो मेरा आखिरी सवाल है आपके लिए, और ये दिस इज़ अ क्वेश्चन जो मैं अपने सारे गेस्ट को पूछती हूँ बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स आई एम ट्राइंग टू डू इज़ एजुकेट young people, young students who are considering different fields, कि अगर कोई डांस फॉर्म को या किसी भी आर्ट फॉर्म को प्रोफेशनली परसू करना चाहता है, स्पेशली कथक डांस, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? मेरी सबसे पहली एडवाइस होगी कि पेशेंस रखें. क्योंकि मैंने जैसा बताया ये प्रोसेस बहुत लंबा है. 10 साल के बाद तो आप प्रोफेशनली फील्ड में जाने के लिए रेडी होते हैं. तब भी आपको ग्रुप परफॉर्मेंसेज मिलती हैं, सोलोज नहीं मिलते. ओके. तो सबसे पहले पेशेंस. और आर्ट फॉर्म जो है वो क्वालिटी डिमांड करती है rather than क्वांटिटी. तो अगर आप अच्छे डांसर हो तो आपको बार बार बुलाया जाएगा परफॉर्मेंसेस के लिए. अप्रोच से एक बार बुलाया जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपको नहीं बुलाया जाएगा. तो मैं कहूँगी कि आजकल तो गूगल देवता है, सर्च करिए. हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो जो लोगों ने कहा उन्होंने मान लिया. तो कथक केंद्र एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ आप सीख सकते हैं. अगर मैं कथक की बात करूँ सिर्फ, तो यू कैन गो टू श्री राम भारती कला केंद्र. यू कैन गो टू माई इंस्टीट्यूट जहाँ मैंने सीखा है, गंधर्व महाविद्यालय. यू कैन गो टू, अगर आप भरतनाट्यम सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं. अलग अलग क्लासिकल डांस फॉर्म्स के लिए अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं जो कि गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है. तो यू कैन गो देयर. हाँ, किसी ने 1 महीना से सीखा और अपना इंस्टीट्यूट खोल दिया, that is not good. You go to a good institute, you get good exposure, you get good opportunities. It's like कि आप IIT से पढ़ाई कर रहे हैं. It's like that. तो So I think the two things, one is have patience because 10 से 11 साल का ये लंबा प्रोसेस है. Number 2, go to the right place for your education.
क्योंकि सही गुरु से सीखना, उनसे तालीम बहुत लेना ज़रूरी। भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंजलि, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। आई वांट टू एक्सप्रेस माय हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू यू। आई Pleasure. थिंक आपने जितनी ऑनेस्टी के साथ, जितनी रॉनेस के साथ बात की है, नॉट एवरीबडी हैज़ द स्ट्रेंथ टू डू दैट। एंड मैं इस शो के, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही चाहती हूँ कि लोग अपनी अपनी स्टोरीज़ बताएं, अपनी ऑनेस्टी शेयर करें, which you've done so very well. So thank you so much. Everyone, if you liked the episode, if you found it relatable, you know the drill. Like the episode, subscribe to my YouTube channel, and repost it in your circles as much as you can. Thank you so much. Thank you.